Okay, so hello everyone, welcome in Agri coaching classes. This is Siddharth Soni, mentor of your NET course. Okay, and from today's we will start the farm machinery and power crash course for 2025. Okay, this is the preliminary course in which we cover the prelims level content also. The price of this course will be 3500 now. And how can you get the course? So you will call me on WhatsApp me in this number and you can get the course. Okay, today is the first class. We'll discuss about the basic introduction of the farm machinery and power and what are the scopes of the mechanization. We'll discuss on this lecture. Okay, so this is the very interesting lecture. If you are starting from today, so first cover this all are the points which talk in this lecture. Okay, and one thing, the daily live class timing will be 8 a.m. to 9:30 a.m. Okay, so if you want to attend the live classes, so punctual on this time, okay, 8 a.m. will start class, okay, and the mode of the classes will be online and Google Meet on or on Agriug application also, okay. तो बेसिकली आप लोगों को दोनों जगहों पर कभी भी मिल सकता है. सो अगर आप लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है ऑफिशियल, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, so you can message me on this number on WhatsApp and you can join the group. Okay, so all are the updates you will get on the group. Okay, सारी updates आपको ग्रुप में मिलेगी. Okay, so जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हम पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. सो इन फर्स्ट क्लास व्हाट वी विल सी, तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे सभी चीजों के बारे में. देखिए 45 डेज का आपका एक कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा, जिसमें हम लोगों ने इस तरीके से कुछ डिवाइड किया है कि हम लोग फर्स्ट वीक में क्या क्या चीजें को कवर करने वाले हैं, उसी बेसिस पे सेकेंड वीक में क्या कवर करेंगे, थर्ड वीक में हम लोग कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, फोर्थ वीक्स में हम लोग कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, फिफ्थ वीक में क्या कवर करेंगे, है ना, सिक्स्थ वीक में क्या कवर और सेवंथ वीक में क्या कवर करेंगे. तो बेसिकली मैंने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है सारी चीजों को, और कंप्लीट सिलेबस को विद द हेल्प ऑफ द इंपॉर्टेंस मैंने वहां पर रखा है कि जो चीजें आप लोगों की एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इन 45 डेज हो जाएगा सारी चीजें अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो बेसिकली ऑल आर द थिंग्स वी पुट ऑन द कोर्स प्लानर. और कहां पर आपको ये मिलेगा, तो जैसे आप कोर्स परचेस करोगे, सो विल गेट अ कोर्स प्लानर फर्स्ट ऑन अ सेक्शन ऑफ पीडीएफ, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट ऑल दिस नोट्स. ओके, यू विल गेट ऑल दिस नोट्स, और उस तरीके से फिर आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी. So basically from today's class we'll discuss about the introduction of the farm mechanization. Okay, so this has a very great meaning in the farm machinery, talking about the farm mechanization. Okay, so basically what is the farm mechanization? So farm mechanization, if we talk about the mechanization, so basically the farm mechanization refers to the use of machinery, tools and implement to carry out agricultural operations with the aim of reducing human and animal labor, improving efficiency, enhancing productivity, and also achieving precision and timeliness in operation. Talking about the orientation for the farm mechanization, तो बेसिकली फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब ही होता है खेती के सभी कामों में मशीन्स का, टूल्स का या इम्प्लीमेंट्स का उपयोग करना, है ना. जो भी चीजें हम लोग मशीनरी जो भी हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो बेसिकली मैकेनाइजेशन मीनिंग ही वो हो रहा है कि जितनी भी मशीनरी है यूज करना है ना, इन द फॉर्म ऑफ टूल्स, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंट टू कैरी आउट द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस. ओके, जितने भी वी आर डूइंग द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ऑन द फील्ड, उन सभी के लिए जो आप लोग क्या है मशीनरी का यूज करो, है ना, मशीनरी की यूज को ये बताता है. तो मैकेनाइजेशन वर्ड की मीनिंग आप लोगों को यहां से क्लियर होगी. ओके, सो use of machinery, tools and implement for the agriculture or operation, that is the farm mechanization. Okay, farming कर रहे हैं with the help of the techniques of mechanization, that is called a farm mechanization. What are the benefits we get for the farm mechanization? इससे बेसिकली रिड्यूस होता है ह्यूमन एंड एनिमल लेबर, है ना. तो इसमें हम लोगों को मैनुअल हाथों से काम कम हो जाता है. जो हम लोग हाथों से पहले काम करते थे, वी हैव सीन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस
इन एंशियंट टाइम दैट इज कॉल्ड परंपरागत खेती। तो उसमें क्या होता था, एक हल होता था, हल की हेल्प से हम लोग टिलेज ऑपरेशन करते थे। सोइंग के लिए हम लोग छिड़काव पैटर्न का यूज करते थे। ओके, फिर इरिगेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, जो भी हमारे वेल होते थे वहां से हम लोग पानी को निकाल करके लाते थे, फिर इरिगेशन करते थे। सो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती थी, हम लोगों को क्रॉप लगाने के लिए 2 से 3 दिन का समय लग जाता था। सो फॉर द कंडीशन, उसी को दूर करने के लिए द न्यू मेथड्स कम्स दैट इज कॉल्ड अ फार्म मैकेनाइजेशन। और इन मशीनरी और टूल्स और इम्प्लीमेंट्स के थ्रू हम लोग बहुत कम समय में जो है एक अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स, है ना। तो बेसिकली इसमें टूल्स भी आते हैं, इम्प्लीमेंट्स भी आते हैं और मशीनरीज भी आती है। दिस ऑल आर द डिफरेंट, मशीनरी अलग होती है, टूल अलग होते हैं, इम्प्लीमेंट्स अलग होते हैं, है ना। तो बेसिकली एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में मशीन्स का यूज करना ही फार्म मैकेनाइजेशन कहलाता है। इससे हमारी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है बेसिकली, है ना, और प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस हुई है, और अचीविंग प्रिसीजन एंड टाइमलीनेस इन ऑपरेशन। तो बेसिकली मैनुअल हाथों से काम कम हो गया है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। ओके, एंड समय पर काम हो रहा है। ओके, तो जो काम हो रहा है आप लोगों का, ये समय पर हो रहा है। एक्यूरेसी और एफिशिएंसी से बढ़ गई है, हमारे काम को करने की जो एक्यूरेसी थी और उसकी एफिशिएंसी थी वो भी बढ़ गई है। और जो मजदूरी पर हम लोग अब निर्भर नहीं है, है ना। जैसे क्या होता था पहले के समय में, अगर हमको फार्मिंग करना है तो हम लोग क्या देखते थे, कि हम लोग लेबर को ढूंढने जाते थे कि भाई हमारे यहाँ लेबर आ जाए। इस वजह से हम पहले जाते थे उनके पास, फिर उनको बुला करके लाते थे, और फिर उस कंडीशन में लेबर जो होता था अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट देता था, क्योंकि दे नो अबाउट द रिक्वायरमेंट। ओके, और अगर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती, किसी भी चीज की डिमांड होती, तो उसका प्राइस बढ़ जाता। तो लेबर भी क्या लेता था, अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट उस समय लेता था। सो दैट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द फार्मर, है ना। तो उस वजह से बचने के लिए भी मैकेनाइजेशन आ गया। मैकेनाइजेशन में एक बार आपको मशीनरी परचेस करना होता है एंड डूइंग द ऑपरेशन ऑन अ फील्ड, so it will be better for you. Okay, so this is the most important concept, that is mechanization. Okay, in next what are the points we'll discuss, like need, okay, all are the things we'll discuss on the basis of the farm mechanization. So this is the very best technique used for the agricultural operations. तो यहाँ पर बहुत सी चीजों से आप लोगों को राहत मिली है, दैट्स व्हाई this is play the important role in the machinery. Now what are the need of farm mechanization in India? तो बेसिकली क्या नीड थी मैकेनाइजेशन करने की, तो उसको हम लोग वन बाय वन नाउ विल डिस्कस फ्रॉम हियर. So there will be the factors and why mechanization is need, we cover into the both types. First of all, we'll cover the factors, and second we discuss about what are the needed, okay, in the condition. So जब फॉर्म मैकेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज अ लेबर शॉर्टेज. द लेबर शॉर्टेज इज द फर्स्ट पॉइंट, basically in which migration to cities and rising labor wages. ओके, बेसिकली लेबर शॉर्टेज में क्या हुआ, मजदूरों का शहर की तरफ पलायन और मजदूर महंगी हो गई, दैट्स व्हाई भी हमको मैकेनाइजेशन करने की जरूरत पड़ी. जो भी आपके जो वर्कर्स थे, वर्कर्स क्या हुए, शहर की ओर जाने लगे. ओके, ये क्या होने लगे, माइग्रेशन हुआ उनका सिटीज में, और जो लेबर की कॉस्ट थी दैट विल बी इंक्रीजिंग. ओके, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट दे आर गेटिंग फॉर द फार्मर, और उनके भाई रिक्वायरमेंट थी फार्मर को, तो वो उनने अपना अकॉर्डिंग एक प्राइस बनाया लेबर्स ने, तो जो इम्पॉसिबल हो रहा था देना, क्योंकि काम एक दिन का नहीं होता था, काम आपका बहुत सारे दिनों तक चलता था, है ना. क्योंकि अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो सबसे पहले टिलेज करोगे, टिलेज के बाद फिर आप लोगों को लेबर की रिक्वायरमेंट टिलेज में पड़ने वाली है. फिर सेकेंड कंडीशन में आप लोग जब सोइंग करोगे तो वहां पर आप लोगों को ऑपरेशन में लेबर की जरूरत पड़ेगी, है ना. तो देर आर लॉट्स ऑफ ऑपरेशंस जिसमें आप लोगों को क्या पड़ रही थी, लेबर की जरूरत पड़ रही थी, और लेबर्स क्या कर रहे थे, मन मुताबिक अपना जो है पैसा लेने की कोशिश कर रहे थे. सो बेसिकली इस वजह से भी हमको जो है मैकेनाइजेशन की नीड पड़ी. ओके, कि लेबर मिल भी नहीं रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है. सो उससे बचने के लिए भी हम लोगों ने जो है फार्म मैकेनाइजेशन को डेवलप किया इंडिया में. सेकंड कंडीशन, टाइमलीनेस. ओके, यहां पर जब हमने देखा फार्म मैकेनाइजेशन में, तो यहां पर देखिए टाइमली ऑपरेशंस हो जा रहे थे.
क्रॉप स्टेजेस आर टाइम सेंसिटिव। ओके, मैकेनाइजेशन की नीड इसलिए पड़ी यहाँ पे कि जैसे मान लो द ऑपरेशंस लाइक सोइंग, हार्वेस्टिंग, इन सभी ऑपरेशंस को करने के लिए सही समय बहुत जरूरी होता है। इफ यू वांट टू डू द सोइंग ऑन डिफरेंट क्रॉप्स, तो भाई उसके लिए भी एक टाइम पीरियड गिवन है। लाइक अगर हम लोग रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बारे में देखा होगा तो वहां पर यू नो अबाउट द कंडीशंस कि भाई रबी क्रॉप का एक सीजन होता है, खरीफ क्रॉप का एक सीजन होता है। सो बेसिकली सभी क्रॉप्स अपने अपने समय पे लगाने पर ही एक अच्छा ग्रोथ देती है। ओके, और एक अच्छा प्रोडक्टिविटी आपको मिलता है। तो यहां पर अगर हमारे पास मैकेनाइजेशन होता तो वी कैन डू द प्रैक्टिसेस ऑन अ टाइम। तो बेसिकली समय पे अगर हम लोगों को करना होता था तो उस वजह से हम लोगों ने, उस वजह से भी हमको नीड पड़ी मैकेनाइजेशन की। ओके, सो फॉर द टाइम फैक्टर ना, टाइमली ऑपरेशन हो, उस वजह से भी हमने फार्म मैकेनाइजेशन को डेवलप किया। ओके, तो बेसिकली लेबर शॉर्टेज एंड timeliness is the both the point are the most important. The third point is called efficiency. Efficiency, it means when the higher efficiency, the manual operation are slow and inconsistent. अगर हम लोग देखें एफिशिएंसी के बारे में, तो अगर हम मैनुअली जाए, ओके, तो मैनुअली क्या होता है, एक व्यक्ति अगर लेबर आपके पास काम करने आ रहा है तो उसका एक फिक्स टाइमिंग होता है। ओके, बेसिकली इफ दे कम इन 9 AM, सो वो 5 बजे तक काम करेगा और बोलेगा अब मेरा हो गया आज का दिन, है ना, आज का दिन मेरा हो गया, आज के बाद, आज के फिर अब मैं इस काम को कल करूंगा। लेकिन मैकेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। ओके, मैकेनाइजेशन में एफिशिएंसी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं करती, क्योंकि क्या होता है, अगर मुझे आज के दिन में कंप्लीट करना होगा तो विद द हेल्प ऑफ द मैकेनाइजेशन मैं आज ही के दिन में उसको जो है वर्क को खत्म करके आगे की ओर बढ़ सकता हूँ। सो एफिशिएंसी बेस्ड भी चीजों पर आप लोगों की नीड पड़ी मैकेनाइजेशन की, तो एफिशिएंसी की वजह से भी आपकी नीड थी। ओके, सो मैनुअल ऑपरेशन आर स्लो और इनकंसिस्टेंट होने की वजह से भी हम लोगों को जो है मैकेनाइजेशन की तरफ जाने की जरूरत पड़ी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करूं तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग बूस्ट द यील्ड्स। मैनुअली जब हम लोग फार्मिंग कर रहे थे तो वो समय के अनुसार ना होने की वजह से, जैसे अगर मान लो मुझे आज सोइंग करना है, अब मुझे आज लेबर ही नहीं मिला तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना भाई कल। ओके, इफ आई हैव नो लेबर इन दिस टाइम, सो फिर मुझे तो आज नहीं हो पाएगा ना मेरा वो काम। लेकिन विद द हेल्प ऑफ द मैकेनाइजेशन वो काम आज ही हो गया, तो भाई मेरी प्रोडक्टिविटी मुझे अच्छी मिल जाएगी उस सीजन तक। सो बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी, जो कि आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है फॉर द एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ओके, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो, सो आप प्रोडक्टिविटी ही नीड है ना भाई आपकी। अगर आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी तो व्हाट आर द पॉइंट टू डू द प्रैक्टिसेस। सो बेसिकली प्रोडक्टिविटी अच्छी मिले, इस वजह से भी जो है मैकेनाइजेशन करने की जरूरत पड़ी। ओके, तो इससे क्या हुआ, फार्मिंग जो थी मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ये क्या कर रही थी आपकी, जो बूस्ट कर रही थी जो भी आपकी पैदावार थी उसको। मल्टीपल क्रॉपिंग, तो मैकेनाइजेशन इनेबल्स क्विक टर्नओवर ऑफ क्रॉप्स। मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो गया मैकेनाइजेशन होने की वजह से। क्या हुआ, जल्दी जल्दी खेत तैयार हो सकता था, इसकी वजह से हम लोग टाइमली जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर सकते थे इस कंडीशन में, कि आज मैंने इस क्रॉप को लगाया और मुझे मालूम है कि 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन होता है किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने के लिए। एंड फिर सेकंड टाइम फिर मैंने दोबारा दूसरे ऑपरेशन करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहा। तो विद द हेल्प ऑफ द मैकेनाइजेशन विल ऑलवेज प्रिपेयर फॉर टू डू द मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, भाई आज मेरा खत्म हुआ, कल फिर मैंने जाकर के वहां पर टिलेज ऑपरेशन किया, फिर अगेन मैंने दूसरी क्रॉप वहां पे लगा दी। सो विद द हेल्प ऑफ द मैकेनाइजेशन इट विल बी द पॉसिबल। ओके, सो मल्टीपल क्रॉपिंग भी हमारा होने लगा, एंड द प्रिसीजन विल बी, प्रिसीजन फार्मिंग पॉसिबल इन दिस कंडीशन। सो फॉर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड सोइंग, ये प्रिसीजन फार्मिंग भी हम लोग कर सकते थे, है ना, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का हम लोग सही सटीक उपयोग भी कर सकते थे उस कंडीशन। सो वी कैन डू द प्रिसीजन फार्मिंग आल्सो। सो व्हाई वी नीड दिस, ऑल आर द पॉइंट वी गेटिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। देखिए, लेबर शॉर्टेज के लिए वजह से भी हमको जरूरत पड़ी, टाइमली ऑपरेशन हो उस वजह से हमको जरूरत पड़ी, एफिशिएंसी अच्छी मिल रही थी इसलिए भी हमको उसकी जरूरत पड़ी, प्रोडक्टिविटी अच्छी मिले इस वजह से भी हमको उसकी जरूरत पड़ी, मल्टीपल क्रॉपिंग अच्छी हो उस वजह से भी जरूरत पड़ी, एंड प्रिसीजन फार्मिंग करने के लिए भी हम लोगों को जरूरत पड़ी इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन की। दिस इज द नीड ऑफ द फार्म मैकेनाइजेशन
ओके, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का देखा जाता है। नाउ द टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, किस तरीके से इवॉल्व हुआ फार्म मैकेनाइजेशन, तो विल टॉक हियर ऑल आर द पॉइंट। सो फार्म मैकेनाइजेशन इंडिया में कब से आया और कैसे आया उसके बारे में हम लोग बात करें। सो टॉकिंग अबाउट द प्री इंडिपेंडेंस, ओके, एरा ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का जो डेट है 1947 में हमारे यहाँ इंडिया में हमारा देश क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। ओके, तो 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उसके पहले जो हमारे यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस जो टाइम हमारा होता था, दिस टाइम के पहले का जो समय है, दैट इज कॉल्ड प्री इंडिपेंडेंस टाइम। सो बेसिकली इन दिस टाइम क्या हुआ करता था, यूज ऑफ एनिमल ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स, ओके, जैसे देसी हल है ना, उसमें बैलगाड़ी आदि का हम लोग यूज करते थे, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, वी आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेशंस मैनुअली, वी डूइंग द ऑपरेशंस मैनुअली, एनिमल पावर्स की बेस्ड पे हम लोग ऑपरेशंस करते थे। लाइक उस समय कुछ हल होते थे, है ना, हल की हेल्प से हम लोग करते थे, सारी चीजों को हम लोग मैनुअली करते थे। फिर क्या हुआ 1947 के बाद में क्या हुआ, तो वो जो फार्मिंग होती थी हम लोग उसको बोलते थे दैट इज अ कल्चरल फार्मिंग, इट इज कॉल्ड परंपरागत खेती ऑल्सो। ओके, तो प्री इंडिपेंडेंस के समय हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, नो डेवलपमेंट इन द कंडीशन, ओके, किसी भी तरीके से कोई भी डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर मैकेनाइजेशन का नहीं हुआ था। सो द मैकेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द पोस्ट इंडिपेंडेंस, 1947 के बाद 1950 से 1970 के बीच में आप लोगों के लिए इंडिया में ट्रैक्टराइजेशन बिगेन्स, है ना, ट्रैक्टर और थ्रेसर आना इस कंडीशन में हमारे यहाँ पे शुरू हुए, कब, पोस्ट इंडिपेंडेंस में। लाइक 1950 से 1970 के बीच में आप लोगों के इंडिया में ट्रैक्टराइजेशन बिगेन हुआ, जिसकी वजह से इंडिया में ट्रैक्टर एंड थ्रेसर्स आने लगे। ओके, अब इसको अडॉप्ट करना हमारे यहाँ के फार्मर के लिए बहुत ज्यादा इजी नहीं था। ओके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ सभी चीजों को पहले समझाना पड़ता है, उसके बाद में फिर अडॉप्ट करते हैं जो हमारे यहाँ के लोग होते हैं सारी चीजों, है ना। सो वहां से 1950 से 70 तक हमारे यहाँ ट्रैक्टर आए, है ना, ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर के साथ में थ्रेसर भी आए। तो बेसिकली वहां से फिर हमारे यहाँ चीजें शुरू हुई, जैसे जैसे फार्मर ने ट्रैक्टर की इंपॉर्टेंस देखा, जैसे जैसे उसने यूजेस देखा, जैसे जैसे उसने समझा कि भाई लेबर के ज्यादा अच्छे से मैं यूज कर सकता हूँ मैकेनाइजेशन का और अच्छी प्रोडक्टिविटी ले सकता हूँ कम समय में, वी कैन गेट अ मोर प्रोडक्टिविटी ऑन द कंडीशन। तो वहां पर फिर आप लोग जो फार्मर्स हुए उनने अडॉप्ट किए दिस टेक्निक्स, तो ट्रैक्टराइजेशन उस समय आया। फिर जब हमारे यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उस समय हम लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, और वहां पर इंटेंसिव मैकेनाइजेशन फॉर व्हीट एंड राइस। और जैसे ही हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इन 1966 एंड 85 MS स्वामीनाथन के थ्रू, सो वहां पर फिर जो हुआ ट्रैक्टर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इन ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोगों ने क्या किया, वी यूज द हाइब्रिड टेक्निक्स इन दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन। और उस कंडीशन में फिर हम लोगों ने बहुत बड़ा एक्सपांडेशन देखने के लिए मिला इन द फॉर्म ऑफ मैकेनाइजेशन, बहुत बड़े लेवल पे एक्सपांड हुई चीजें, है ना। जो फार्मर्स जो जिनको अभी भी यूज करता नहीं बन रहा था इन द हेल्प ऑफ द एरा ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि 1966 से 1985 तक का चला, तो उस कंडीशन में फार्मर को सारी चीजें समझ में आई एंड दे अडॉप्ट द मैकेनाइजेशन टेक्निक्स इन अ ब्रॉड मैनर, और बहुत बड़े लेवल पे फिर उन्होंने मैकेनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया वहां से। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन समय से आप लोगों का ये जो है स्टार्ट हुआ। एंड मॉडर्न फेज ऑफ द 2000 ऑनवर्ड्स, प्रिसीजन फार्मिंग, ड्रोन, सेंसर एंड ऑटोमेटेशन। ओके, और नाउ मॉडर्न फेज की अगर मैं बात करूं तो अब तो हमारे यहाँ पे प्रिसीजन फार्मिंग होने लगी है, ड्रोन्स के थ्रू हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, सेंसर्स के थ्रू करने वाले, ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग जो है फार्मिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली नाउ दिस इज द पीरियड इन विच वी डू परफॉर्मिंग द मॉडर्न फेज, all are the operations we can do with the help of the GPS, sensors, okay, drones, and automatically we can do all the operations। तो ये इस तरीके से कुछ इवोल्यूशन हुआ है मैकेनाइजेशन का इन इंडिया में, कि सबसे पहले एनिमल ड्रॉन इंप्लीमेंट्स का हम लोगों ने यूज किया, उसके बाद ट्रैक्टर और थ्रेसर आए हमारे इंडिया में, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से मैकेनाइजेशन को एक इंपॉर्टेंस मिली, और जैसे ही मैकेनाइजेशन को इंपोर्टेंस मिली तो फिर प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पर बढ़ गई, और आज के समय में हमारे यहाँ पर मोस्टली जो खेती हो रही है विद द हेल्प ऑफ द मैकेनाइजेशन ही हो रहा है। ओके, मैकेनाइजेशन हमारे यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे अब जो है
फार्मिंग हमारे यहाँ पे की जाती है, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम लोग इसके थ्रू ले पा रहे हैं. ओके, सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ द मैकेनाइजेशन, इन द नीड ऑफ द मैकेनाइजेशन. Now talking about the scope of the farm mechanization, what are the scopes of the mechanization? So basically the scopes refers to the area or field of application of mechanization in agriculture. Okay, so area और field application के बेस्ड पे मैकेनाइजेशन को जो है रिफर्स किया जाता है, तो उसको हम लोग वन बाय वन यहाँ पर अब देखने वाले हैं. See the scopes of farm mechanization on the basis of the operation wise scope. First of all, we'll see the operation wise scope, and second we see the crop wise scope. Okay, so we have divided into a further points. Yeah. So comes into the first point in which we covering the operation wise scope कि किस काम के लिए किस मशीन का यूज किया जाता है अगर मैकेनाइजेशन के स्कोप की बात करें. सो फॉर द लैंड डेवलपमेंट, सबसे पहले अगर मान लो जो हमारी प्रैक्टिस होती है दैट इज कॉल्ड लैंड डेवलपमेंट. ओके, जिसमें हम लोग डेवलप करते हैं जो हमारी लैंड होती है उसको. बेसिकली मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स के जो एग्जांपल होते हैं फॉर द लैंड डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड अ बुलडोजर, लैंड लेवलर्स एंड सबसॉइलर्स वी आर यूजिंग फॉर द operation of a land development here. Okay, in second condition we are doing the primary tillage operations because we want to do the farming practice, so it will be a very needed कि before हम लोग उसमें क्या कर ले, primary tillage operations कर ले. So for the equipment we are using for the primary tillage, that is MB plow, disc plow also we are using, this is the mechanized equipments also. And for the secondary tillage we are performing with the harrows, cultivators and rotavators. We are using this, all are the example devices there. We are using this, all are the equipments there, machines there. For the next operation that is called sowing and planting, we are using the seed drills, planters, transplanter for the sowing and planting also. Next practice is called irrigation practice. For the irrigation practice we using the pump, drip, sprinkler systems फॉर द इरिगेशन पर्पस. ओके, फिर प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो है मैनुअल ऑपरेशंस, पावर स्प्रेयर्स एंड ड्रोन्स का हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्लांट प्रोटेक्शन. ओके, सो वी आर यूजिंग द स्प्रेयर्स आल्सो फॉर डूइंग द ऑपरेशन. ओके, आल्सो and for harvesting and threshing we use the combine harvester and reapers and threshers also. We are using for the post harvest operation cleaners, graders, dryers also. And for the storage and processing operation we will use the silos, mills, packaging units also. So basically for the all operations we have all are the mechanized equipments. Okay, जो कि हमारे पास आज के समय में अवेलेबल है. तो देखिए पूरे ऑपरेशंस जितने भी प्रैक्टिसेस होती है लाइक इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है. सबसे पहले हम लोग लैंड डेवलप करते हैं, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन करते हैं, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन करते हैं, सोइंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं. ओके, फिर प्लांट प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो फर्टिलाइजर्स या फिर जो भी आपके अदर चीजों का हम लोग यूज करते हैं. हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग ऑपरेशन होता है, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन होता है, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है. तो इन सभी ऑपरेशन में जितने भी टाइप के मशीन्स आप लोगों की यूज होते हैं, यहाँ पर सभी टाइप के मशीन्स आज के समय में हमारे पास अवेलेबल हैं. दैट इज कॉल्ड अ मैकेनाइजेशन इन द फार्म, है ना. तो स्कोप देखिए इस तरीके से स्कोप हुआ कि सभी चीजों के लिए मशीनरी आ गई है. फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप वाइज स्कोप भी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रॉप वाइज की कंडीशन में भी आपको स्कोप दिया हुआ है ना. लाइक अगर आप सीरियल्स क्रॉप अगर लगा रहे हैं तो वो हाई कंबाइन एंड रोटावेटर स्प्रेयर्स आर यूज देयर, है ना. ये फुल्ली मैकेनाइज्ड पॉसिबल है इस कंडीशन में अगर आप सीरियल्स क्रॉप यूज कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्रॉप अगर मान लो आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मॉडरेट लेवल पे आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं लाइक सीड्रिल्स का, थ्रेसर्स का, डिगर्स का, पावर स्प्रेयर्स का यू कैन ऑल्सो यूज देयर. पल्सेस और ऑयल सीड्स में अगर आप लोग बात करें तो लो टू मॉडरेट लेवल जाकर के you can use the planters and threshers also, okay, for the pulses and oil seeds. Next one is called a cotton. For the cotton you can use the high pickers, planters and sprayers also there. Okay, so basically स्कोप भी यहाँ पर इस फॉर्म में दे दिया गया है कि भाई अलग अलग क्रॉप के लिए मान लो आपकी सीरियल्स क्रॉप है तो उस कंडीशन में जो
स्कोप होता है मैकेनाइजेशन का जिसमें कॉम्बाइन हो गया, रोटावेटर हो गया, स्प्रेस का आप लोग बेसिकली हाईली यूज करते हो, है ना। हॉर्टिकल्चर के लिए डिगर्स और पावर स्प्रेस का आप लोग जो है मॉडरेट लेवल पे यूज होता है। पल्सेस और ऑयल सीड्स के बारे में बात करें तो लो टू मॉडरेट यूज हो रहा है, लाइक प्लांटर्स के लिए, थ्रेसर्स के लिए। शुगर केन की इफ यू टॉक अबाउट द शुगर केन तो ये हाईली यूज होता है इसमें हार्वेस्टर एंड सीड कटर प्लांटर्स का। ओके, कॉटन के लिए वी यूज द पिकर्स, प्लांटर्स एंड स्प्रेस आल्सो। So this is also the use of the basic of the crop wise. So first of all we covered the operation wise scope and the crop wise scope here. Next one, the scope is based on the region wise scope in India, है ना। तो बेसिकली रीजन वाइज भी स्कोप यहाँ पर तैयार किया गया है। सो बेसिकली द रीजन वाइज स्कोप विल सी हियर। सो द रीजन इन द पंजाब एंड हरियाणा द मैकेनाइजेशन लेवल विल बी हाई। तो 70% से ज्यादा यूजेस हो रहा है, so that the mechanization level is called the high level we use there. What is the mechanization level? तो जहां कौन से स्टेट्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है मैकेनाइजेशन का, सो बेस्ड ऑन द दैट कंडीशन हम लोग देखते हैं कि वो रीजन आप लोगों का जो है मोस्टली यूज कर रहा है मैकेनाइजेशन को। तो जो सबसे ज्यादा इंडिया में जहां पर मैकेनाइजेशन यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स, क्योंकि वहां पर फार्मिंग भी उस लेवल पे की जा रही, बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे फार्मिंग होती है इन द पंजाब एंड हरियाणा। सो वी यूज द मैकेनाइजेशन लेवल देयर। 70% से ज्यादा जो है इसका यूज किया जा रहा है मैकेनाइजेशन का देयर। रीजन क्या है? फ्लैटलैंड्स है, इरिगेशन रिच फार्मर्स है वहाँ के, है ना। तो बेसिकली सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जागरूक है वहाँ के लोग, है ना। एंड दूसरी चीज की वहाँ की भूमि भी क्या है, आपकी फ्लैटलैंड है, तो वहां पर फार्मिंग करने के लिए किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हम लोगों को फेस करने की जरूरत नहीं होती। तो रीजन वाइज स्कोप में द पंजाब एंड हरियाणा इज द ग्रेट, एंड आगे है ये सब चीजों। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वेस्टर्न यूपी एंड महाराष्ट्र। इस इन रीजन्स में आप लोगों का मॉडरेट लेवल पे मैकेनाइजेशन यूजेस देखने के लिए मिल रहा है। जो मैकेनाइजेशन का यूज देखने के लिए मिल रहा है वो जो है वेस्टर्न यूपी हो गया, यूपी के पश्चिमी हिस्सों में, है ना। फिर महाराष्ट्र में ये 50 to 60% यूजेस ऑफ द कंप्लीट मैकेनाइजेशन लेवल। ओके, इस कंडीशन में 50 से 60% तक का यूज हो रहा है। मीडियम साइज फार्म में आप लोग इसका यूज करें, मध्यम आकार के खेतों में इसका यूज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो इसमें लो अमाउंट पे आप लोगों का जो है मैकेनाइजेशन यूज हो रहा है। तो हाईली 70% कहाँ हो रहा है? पंजाब एंड हरियाणा में। मॉडरेट अमाउंट कहाँ यूज हो रहा है? वेस्टर्न यूपी एंड महाराष्ट्र में। एंड लो जो यूज हो रहा है लाइक बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ के लोग अभी जागरूक नहीं हुए उन चीजों से, क्योंकि यहाँ पर क्या है वही कल्चरल टाइप से थिंकिंग भी है लोगों की, क्यों बोलना चाहिए, कि वो अभी भी थोड़े से अपने आप को मानते हैं उस लेवल पे। तो दे आर नॉट यूजिंग द मैकेनाइजेशन टेक्निक्स ऑन अ ब्रीफ मैनर, ओनली 30%, लेस देन 30% यूजेस है मशीन्स का। जब भी मैं यहाँ पर मैकेनाइजेशन टर्म यूज करूंगा, इट मीन्स वी आर यूजिंग द मशीन्स ऑफ विच यूज इन द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, है ना। इन सभी पॉइंट्स में मैं मशीन्स की ही बात कर रहा हूँ जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में यूज होता है। तो बेसिकली ये इस तरीके से देखिए कुछ रीजंस वाइज स्कोप यहाँ पर बताए गए थे जो इस तरीके से आप लोगों के इंपॉर्टेंस होकर। तो बेसिकली रीजन वाइज स्कोप भी हम लोगों ने देख लिया मैकेनाइजेशन का। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ फार्मर्स। ओके, तो दिस ऑल आर द स्कोप्स वी हैव कवर्ड हियर। कि तीन टाइप्स से हमने बेसिकली बात किया। स्कोप देखा फार्म मैकेनाइजेशन का कि सबसे पहले हमने ऑपरेशन वाइज स्कोप देखा कि अगर हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो व्हाट आर द मशीन्स वी नीड फॉर डूइंग द ऑपरेशंस। वी सी दिस in all process. Secondly, we seen the crop wise scopes in which if we doing the cereals crop, if we grow the cereals crop, so highly needed होता है combine रोटावेटर स्प्रे। ये सारी चीजों के बारे में भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, सो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है ये आपकी। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मर इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके के फार्मर्स होते हैं उनके पास भी हम लोग अब बात करते हैं। तो इंडिया में डिवाइड किया गया है इन द डूइंग द ऑपरेशंस ऑफ अ फार्म प्रैक्टिसेस। तो वहां पर भाई फार्मर्स को भी डिफाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड, है ना। तो देयर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ फार्मर प्रेजेंट इन इंडिया। फर्स्ट इज अ लार्ज फार्मर, सेकंड इज अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, and the third is a tenant farmers. Okay, so there will be a three types of farmers are in India. Just a second.
The farmers are divided into three types like large farmers, small and marginal farmers, tenant farmers. So preferred mechanization approaches बेस्ड पे आप लोगों के फार्मर्स है ना, कि जैसे बड़े किसान की अगर मैं बात करूं, लार्ज फार्मर्स की बात करूं, तो ओन हाई एंड मशीनरी। ओके, खुद के उनके पास ट्रैक्टर्स हैं, खुद के थ्रेसर्स हैं, है ना, वो खुद अपने लिए जो है वो मैकेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं ऑन हाई एंड मशीनरी, उनके पास खुद की चीजें है ना, बोला जाए तो दैट इज कॉल्ड बड़े फार्मर्स। जो बड़े फार्मर्स है उनके पास खुद ये सारी चीजें, तो दे कैन यूज। छोटे किसान जो होते हैं लाइक कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीन किराए पर ले सकते हैं, है ना, क्या अप्रोच हो सकती है मैकेनाइजेशन की, तो खुद लार्ज फार्मर खुद ले सकते हैं। अगर मान लो स्मॉल फार्मर्स है या मार्जिनल टाइप के फार्मर्स है तो दे कैन गेट कस्टम हायरिंग सर्विसेज देयर। अगर किराएदार किसान है लाइक टेंट मान लो उन्होंने अधिया लिया है, ठेका लिया है, हम लोग बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन एमपी हम लोग क्या देते हैं, खेतों को अधिया देते हैं, ठेका देते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द फार्मर टेक अ लैंड ऑन अ रेंट एंड दे डूइंग द फार्मिंग, एंड प्रॉफिट जो होता है उसको 50-50% में डिवाइड करके जो है हम लोग उस चीजों में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंटेंट फार्मर्स। ओके, तो ये प्रीफर कम्युनिटी शेयर्ड मशीनरी, है ना, कम लागत वाले औजार या समूह मशीनरी हम लोग इसमें वो यूज कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ द बेस्ड ऑन द फार्मर्स ये भी अलग अलग टाइप से दे कैन यूज द प्रीफर्ड मैकेनाइजेशन अप्रोच देयर। ओके, तो उनके यूजेस अनुसार वहां पर हमको चीजों की नीडेड होती है, चीजें आप लोगों को मिलती है। तो बेसिकली इस तरीके से भी ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द फार्म मैकेनाइजेशन की, व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो मैंने बताया कि टाइमलीनेस इज द फर्स्ट बेनिफिट एस्पेक्ट। तो टाइमली सोइंग होता है, वीडिंग हार्वेस्टिंग इस समय में जो है मैकेनाइजेशन की हेल्प से हमारा समय के अनुसार हो जाता है। ओके, तो समय पर काम हो रहा है ना, टाइमलीनेस इन द सेंस कि आपका जो काम हो रहा है, जो एग्रीकल्चर में समय पे चीजें होना चाहिए था वो आपकी समय पर हो रही है ना, तो समय पर बुआई हो रही है, निड़ाई हो रही है, कटाई हो रही है, तो उस वजह से द एस्पेक्ट इज कॉल्ड टाइमलीनेस देयर। सेकेंड इज अ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इट मीन्स कि अधिक उत्पादन आपको मिल रहा है, अप टू 25 to 30% इंक्रीज इन इल्ड। ओके, 20 से 30% इल्ड तक की हमारे यहाँ पर वृद्धि हो रही है इस वजह से। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इनपुट एफिशिएंसी। ओके, सो बेसिकली बेटर प्लेसमेंट ऑफ सीड्स। ओके, खाद बीज सही जगह और सही मात्रा में हम लोगों को मिल रहा है, तो इनपुट एफिशिएंसी भी अच्छी हो रही है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड लेबर सेविंग। लेबर सेविंग इट मीन्स कि अप टू 50% रिडक्शन आप लोगों का हो रहा है लेबर की लागत में, है ना, मजदूर की जो लागत हम लोगों को लग रही थी पहले फॉर डूइंग द ऑपरेशन, हम लोग को क्या लग रहा था, मान लीजिए 100 रुपए लग रहा था पर डे का, तो अब मैकेनाइजेशन की हेल्प से कितना हो गया, 50 रुपीज हो गया। सो भाई 50% रिडक्शन हुआ है कॉस्ट में, तो लेबर कॉस्ट भी हम लोग सेव कर पा रहे हैं। ड्रग ड्रगरी रिडक्शन हुआ है ना, बेसिकली महिला श्रमिकों का जो है श्रम भी कम हुआ है इस कंडीशन में, तो स्पेशली फॉर द वुमेन्स लेबर, है ना। डग कंधे का भार भी कम हुआ है इस वजह से। पहले की कंडीशन में क्या करना पड़ा था, महिला भी अगर काम करने आ रही थी तो उस कंडीशन में उनको फिर हाईली वेट लेकर के मशीन, मतलब जो चीजें होती थी उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, इन सभी चीजों में ऑपरेशन में यूज होता है। लाइक अगर आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करोगे ना, एग्रीकल्चर फार्मिंग करोगे, तो उस जगह पर आप लोगों को बहुत सी चीजों को करना पड़ता है। फिर बेटर क्वालिटी मिली विद द हेल्प ऑफ द फार्म मैकेनाइजेशन, क्वालिटी भी हमको बेटर मिली। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए टाइमली हम लोग सोइंग कर रहे हैं, टाइमली हम लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, टाइमली जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं समय के अनुसार हम लोग क्या करते जा रहे हैं, परफॉर्मिंग ऑन द लैंड, तो भाई साहब उस वजह से हमको सभी चीजें तो बेस्ट मिलेगी ना। तो यूनिफॉर्म सोइंग, रेडिंग, हार्वेस्टिंग होने की वजह से जो क्रॉप की क्वालिटी है दैट विल बी इंक्रीज। ओके, वो वहां से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो बेहतर क्वालिटी हम लोगों को मिल गई है। एक समान बीज बुआई हो रही है, कटाई हो रही है, उस वजह से सारी चीजों को हम लोगों को सभी चीजें मिलती गई। तो दिस ऑल आर द बात करें तो दिस ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ फार्म मैकेनाइजेशन, दिस ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्म मैकेनाइजेशन जो कि हम लोग यहाँ से देखते हैं, और इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन इफ यू वांट। तो बेसिकली ये इस तरीके से होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टेंट्स इन फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया, कि भाई क्या समस्याएं हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है इंडिया में जब हम मैकेनाइजेशन को ला रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैकेनाइजेशन जब इंडिया में आया तो उसके लिए भी कुछ कंस्ट्रेंट्स और डिस्क्रिप्शन इस तरीके से गिवन है इस फॉर्म में कि इंडिया में स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। पहली चीज तो क्या है, छोटे बिखरे खेत है हमारे यहाँ पे, है ना। हर व्यक्ति के पास 1 से 2 एकड़ या 3 एकड़ खेती है आज के समय में देखे। फिर पहले के समय में क्या होती थी, मैकेनाइजेशन डेवलप्ड करने का ही जो इंपॉर्टेंस था कि पहले के समय में बहुत बड़ी लैंड हुआ करती थी ना, बहुत बड़ा एक जमीन का हिस्सा हुआ करता था, वो डिवाइडेड फॉर्म में नहीं था, तो इस वजह से डेवलप्ड हुआ मैकेनाइजेशन। बट आज के समय में क्या हो रहा है, सभी घरों में, सभी के घरों में देखना कि डिवाइडेड फॉर्म में आपके पास खेती है ना। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ही आपके पास लैंड है, और अगर मान लो छोटे लैंड होल्डिंग्स है तो उसमें अगर आप मैकेनाइजेशन करोगे तो इट विल बी कॉस्टली। आप लोग को भी पता है कि भाई मुझे 1 एकड़ 2 एकड़ में अगर मैं मशीनरी यूज करूंगा तो मेरा मशीनरी का कॉस्ट ही ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो स्मॉल लैंड होल्डिंग एक बहुत बड़ी समस्या के समय ऊपर आया हमारे ऊपर, है ना। तो जिससे क्या हुआ, 85% फार्मर होल्ड लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया में 85% जो फार्मर्स हैं उन्होंने होल्ड कर लिया जो 2 हेक्टेयर तक की जो लैंड है उनके द्वारा किया गया, है ना। तो ट्रैक्टर या बड़े यंत्र का उपयोग मुश्किल हुआ उस वजह से, है ना। अब भाई हम लोग 1 एकड़ 2 एकड़ के लिए ट्रैक्टर या फिर मैकेनाइजेशन का यूज तो नहीं कर सकते। सो अगर हमको अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए विद द हेल्प ऑफ द मैकेनाइजेशन, तो हमको बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। बट यहाँ पर वो चीजें नहीं मिल पा रही है, तो बेसिकली दिस इज नॉट गुड फॉर द डूइंग द ऑपरेशन। द हाई कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, मशीनरी का कॉस्ट भी ज्यादा है ना, क्योंकि मशीनरी वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इक्विपमेंट्स देयर, है ना। अलग अलग चीजों का हम लोग यूज करते हैं, तो भाई वो कॉस्ट तो मशीनरी की बहुत ज्यादा होती है। अगर आप ट्रैक्टर परचेस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के ऊपर में ही आपको कोई भी ट्रैक्टर मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज डिपेंड, तो ये एक कंस्ट्रेंट सामने आया कि नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल। अब अगर कॉस्ट ज्यादा है तो उस वजह से भाई बड़े किसान तो अफोर्ड कर पा रहे हैं लेकिन छोटे किसान अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो ये कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से भी एक कंस्ट्रेंट हमारे सामने देखने के लिए मिला। द लो अवेयरनेस, अवेयरनेस भी नहीं था, जो भी हमारे यहाँ के लोग थे उनके अंदर अवेयरनेस नहीं था टू टेक द मैकेनाइजेशन। ओके, मैकेनाइजेशन के लिए उसमें अवेयरनेस पैदा करना जरूरी था, लेकिन उन जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो अवेयर नहीं थे, तकनीकी जानकारी की कमी थी उन लोगों को। तो फार्मर्स अनअवेयर ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई उसमें जो फार्मर्स थे वो क्या हुए, अनअवेयर हुए। तो इस वजह से भी जो है एक समस्या हुई हमारे लिए। पुअर आफ्टर सेल्स सर्विस, ओके, जो सेवा और मरम्मत की इसमें भी कमी आई, है ना। सेल्स वाले जो थे ये पुअर होते गए। जैसे आपको मान लो जैसे किसी ने मशीन बेचा हमें, तो सर्विस उतनी अच्छी से हमको मिल नहीं रही थी किसी भी चीज की, तो उस वजह से फिर फार्मर भी दिक्कत में आया। फिर उसने बोला कि नहीं यार, उससे अच्छा तो लेबर वाला ही सही है, तो ये भी एक समस्या हमारे सामने आई। तो लीड टू अंडर यूटिलाइजेशन। ओके, तो उपयोग के अनुसार गांव में सेल सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से भी जो है एक समस्या हम लोगों को ये देखने के लिए मिली। इन इन एडुकेट ट्रेनिंग, ओके, जो इसके लिए जब हम मैकेनाइजेशन का हमने इंडिया में लाया तो वहां पर हमारे पास जो था ट्रेनिंग्स के लिए अवेलेबल नहीं थे, एडेक्वेट ट्रेनिंग्स हम लोग दे रहे थे, किसी भी प्रकार का कोई ट्रेनर नहीं था कि कैसे उसको यूज करना चाहिए, मैकेनाइजेशन को कैसे यूज होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने देखने के लिए मिली कि शॉर्टेज ऑफ द स्किल्ड ऑपरेटर और नॉट अवेलेबल ऑन अ ब्रॉड लेवल। सो उस वजह से सभी जगहों पर जाने के लिए जो है पॉसिबल नहीं हो पाया, और वहां से भी चीजें आप लोगों की बिगड़ती रही। द नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप मिला, लाइक बिजली डीजल की कमी होने की वजह से, जो रूरल रोड्स, पावर सप्लाई इशूज की वजह से भी हम लोग जो है मशीनरी का यूज नहीं कर पाए, क्योंकि सम ऑफ द मशीन्स नीडेड द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, है ना। कुछ मशीन्स का यूज करने के लिए यू नीड द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाया, खेतों तक हम लोगों ने बिजली पहुंचाने, कई जगह पर अभी भी बिजली नहीं है ना, सोर्सेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, तो उस वजह से वी फेस द प्रॉब्लम्स। और भाई रूरल रोड्स भी नहीं है, अगर आप मशीनरी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते हो सो यू नीड द प्रॉपर रोड। ओके, सो रोड की भी जरूरत पड़ती, तो उन खेतों तक जाने के लिए उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, रोड्स ही नहीं है। सो दिस ऑल आर द कॉन्स्टेंट्स जो कि हम लोगों को फेस करना पड़ा इन द फेज ऑफ मैकेनाइजेशन। ओके, तो फार्म मैकेनाइजेशन बहुत बेस्ट है अगर आप लोग देखें फॉर द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, लेकिन
फॉर द सम कंडीशंस, जो कंस्टेंट्स आप लोगों के सामने निकल के आए ये सारे इस फॉर्म में थे, है ना, कि स्मॉल लैंड होल्डिंग, हाई कॉस्ट ऑफ मशीनरी, लो अवेयरनेस होने की वजह से, सेल्फ सर्विस जो है पुअर होने की वजह से, इनएडुकेट ट्रेनिंग होने की वजह से, या इन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स होने की वजह से, you will see the this types of the constraints in the mechanization. Okay, now talking about the future prospects of farm mechanization, कि what are the future prospects हम लोगों ने लेकर के रखा है मैकेनाइजेशन के लिए, उनके बारे में भी हम लोग बात करें, है ना, कि फार्म मैकेनाइजेशन का भविष्य क्या होगा इन आने वाले समयों में। तो बेसिकली मैकेनाइजेशन कुछ एरियाज में जो है अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करी, इन विच द फर्स्ट इज द स्मार्ट मैकेनाइजेशन, प्रिसीजन एग्रीकल्चर करने की कोशिश हो रही है, ड्रोन बेस्ड ऑपरेशन हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, मिनी माइक्रो मशीन्स डेवलपमेंट हो रहा है, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स हमारे यहाँ पे जनरेट हो रहा है ना। तो बेसिकली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में बात करें तो आपके यहाँ पर स्मार्ट जो है मैकेनाइजेशन होगा। स्मार्ट मैकेनाइजेशन में जैसे एआई सेंसर आधारित आपके यंत्र यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए, है ना, ये हमारे यहाँ पे डेवलप होंगे मैकेनाइजेशन में, जिसके हेल्प से ऑटोमेटिकली यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस, है ना, आप लोग घर में बैठे रहोगे, केवल बटन दबाए आप लोगों के सारे ऑपरेशंस होने लगेंगे, लैंड होल्डिंग, टिलेज, सोइंग, प्लांटिंग, है ना, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, ऑल द प्रैक्टिसेस आप लोग घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट मैकेनाइजेशन आर डेवलपिंग नाउ, है ना, इन सभी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है ना, ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स आर डिजाइन, ओके, तो ये डेवलप हो रहे हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बढ़ रही है, जीपीएस गाइडेड सोइंग आपका स्प्रेइंग हो रहा है ना, जीपीएस के थ्रू हम लोग गाइड कर सकते हैं सोइंग और स्प्रेइंग करने के लिए, ड्रोन बेस्ड ऑपरेशन आपके हो रहे हैं, पेस्टिसाइड कर एंड फर्टिलाइजर स्प्रेइंग आप लोग विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन्स कर सकते हो, सभी हिस्सों पे जो है कम लागत में अच्छे से पूरा एक बार ड्रोन मेथड के थ्रू आप लोग जो है स्प्रे कर सकते हो, कस्टम हायरिंग सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं, किराए पर मशीनें उनको मिले, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही मशीनरी एक्सेस करने के लिए, कि जो सभी किसान हैं उन सभी को जो है कम कॉस्ट में अच्छी मशीनरी मिल पाए, है ना, किराए से वो मशीन ले सकते हैं कम कॉस्ट में, है ना, तो बेसिकली कस्टम हायरिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, मिनी एंड माइक्रो मशीन्स का यूज किया जा रहा है, लाइक छोटे खेतों के लिए छोटे और हल्के उपकरण का यूज हम लोग यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, फॉर स्मॉल फार्मर्स यू एंड हाईली रीजन्स, ओके, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, सस्टेनेबल सॉल्यूशन इन डेवलपमेंट, प्रदूषण रहित विकल्प हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो बेसिकली द फार्म मैकेनाइजेशन का जो भविष्य है कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली these all are the important points for the today's lecture, in which we see the what are the what is the farm mechanization, okay, and why we need the mechanization in India, need of the farm mechanization in India we have seen in the deep manner, and evaluation किस तरीके से हुआ हमने इसके बारे में भी बात किया, what are the scopes of farm mechanization, क्या स्कोप था मैकेनाइजेशन का इंडिया में, उसके बारे में भी वी हैव सीन इन दिस लेक्चर। फिर मैंने डिफरेंट डिस्कस किया ऑपरेशन वाइज स्कोप के बारे में, क्रॉप वाइज स्कोप के बारे में, वी हैव सीन द रीजन वाइज स्कोप इन इंडिया कि हाउ द स्कोप इन रीजन वाइज, टाइप्स ऑफ द फार्मर्स की बात किया कि अगर फार्मर्स हैं तो जो लार्ज फार्मर्स हैं उन्होंने अपने लिए ओन हाई एंड मशीनरी यूज किया, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं कस्टम हायरिंग सर्विसेज के थ्रू उन्होंने जो है मशीनरी को हायर किया, टेंट फार्मर्स है तो उन लोग के पास प्रीफर कम्युनिटी जो थी उनके थ्रू जो है शेयर्ड मशीनरी का यूज किया गया। फिर बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन वी हैव सीन इन दिस लेक्चर। कंस्ट्रेंट्स की बात किया कि भाई कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं, एंड द प्रोस्पेक्ट्स जो भी फ्यूचर में आप लोगों का यूज होने वाला है इन द मैकेनाइजेशन वी हैव सीन द इन दिस लेक्चर। नाउ we'll discuss about some ASRB net prelims questions in this lecture also। कुछ नेट लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के पूछ सकते हैं, उनके बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे बात करें। जैसे हमने पूरा कंप्लीट लेक्चर देखा तो उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्म मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है। तो यहाँ देयर इज द ऑप्शंस आर इंक्रीज लेबर रिक्वायरमेंट, लेबर की रिक्वायरमेंट को बढ़ाना, रिड्यूस यील्ड लॉसेस, रिड्यूस ह्यूमन drudgery and increase efficiency, and also the promote only large scale farming। तो बेसिकली मैंने फार्म मैकेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव बताया था दैट इज रिड्यूस करना चाहते हैं हम लोग क्या,
यानी बेसिकली फार्म मैकेनाइजेशन में बोल रहा है कि मजदूरी को बढ़ाना, यील्ड लॉस करना, डडगरी कम करना और एफिशिएंसी को बढ़ाना, या फिर सिर्फ बड़ा खेतों में इसका यूज करना। तो द थर्ड पॉइंट इज द करेक्ट इन दिस कंडीशन कि भाई रिड्यूस करना, जो ह्यूमन के ऊपर जो डडगरी हो रही है या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना हमारा जो है मेन मोटिव है जो फार्म मैकेनाइजेशन में वी आर यूजिंग। The second questions like this is the which of the following is not a benefit of farm mechanization? इनमें से कौन मैकेनाइजेशन का बेनिफिट नहीं है? ओके, तो हायर क्रॉप यील्ड, टाइमली ऑपरेशन, यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन, सॉइल इरोजन कंट्रोल। सो बेसिकली द फोर ऑप्शंस इज गिवन। तो फर्स्ट इज अ हाई क्रॉप यील्ड, या हाई यील्ड है, टाइमली ऑपरेशन है, यूनिफॉर्म काम है, या सॉइल इरोजन का कंट्रोल है। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। तो हाई क्रॉप यील्ड तो बेनिफिट में आता है, टाइमली ऑपरेशन भी हो रहा है, ये भी हमारा बेनिफिट है मैकेनाइजेशन का। यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशंस, दिस इज आल्सो बेनिफिट ऑफ द फार्म मैकेनाइजेशन, but the soil erosion control it is not a benefit of the farm mechanization. So the option number B will be correct here. Option number D will be correct here, and this is the option number D is the right. तो सॉइल इरोजन कंट्रोल आपका यहाँ से नहीं हुआ, तो बेसिकली ये चीज है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दैट कि द परसेंटेज ऑफ फार्मर्स इन इंडिया होल्डिंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी? सो बेसिकली इंडिया में मैंने अभी बात किया कि 85% से ज्यादा लोगों के पास 2 हेक्टेयर लैंड उन्होंने क्या किए, होल्ड करके रखे हैं। तो उस वजह से वो खुद ही जो है फिर अपने विदाउट डूइंग द ऑपरेशंस ऑफ मैकेनाइजेशन दे आर यू मैनुअली जो है वहां पर फिर ऑपरेशंस कर रहे हैं, है ना। कुछ कुछ फार्मर्स हैं जो एक्टिव हैं तो वो यूज कर रहे हैं, जैसे सभी मशीनरी का यूज नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ मशीनरी का वो यूज कर रहे हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द फार्मिंग। ओके, तो बेसिकली the main the option number D will be correct in this question. Now the next question is the which state has the highest farm mechanization level in India? So basically अगर जहां भी पंजाब दिखा या हरियाणा दिखा, that is the correct answer for you. तो बिहार, पंजाब, ओडिशा एंड असम, तो बेसिकली द पंजाब इज द करेक्ट आंसर फॉर द मैकेनाइजेशन लेवल। ओके, तो फार्म मैकेनाइजेशन के लिए आपका जो पंजाब है वो बहुत आगे है, ठीक है। क्वेश्चन is which of the following is used for sowing seed in rows? तो रोटावेटर, एम्बी प्लाउ, सीड ड्रिल एंड सबसॉइलर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रो में बीज बोने के लिए कौन सा इंप्लीमेंट यूज होता है। तो बेसिकली फॉर द सोइंग ऑपरेशंस मैंने बताया था कि जो सीड ड्रिल है वी आर यूजिंग फॉर द सोइंग सीड ऑन इन अ रो। ओके, सोइंग ऑपरेशंस का जो ऑपरेशन में यूज होता है दैट इज द सीड ड्रिल देयर। बाकी जो है रोटावेटर, एम्बीप्लाउ और सबसॉइलर है, दैट ऑल आर द टिलेज ऑपरेशंस इक्विपमेंट्स है ना, वो टिलेज ऑपरेशंस में हम लोग यूज करते हैं। तो ये ऐसे ही आप लोग डायरेक्टली देख के बोल सकते हो। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड अ मेजर कंस्ट्रेंट्स इन फार्म मैकेनाइजेशन इन हिली एरियाज व्हाट? हिली एरिया में मैकेनाइजेशन का मेन प्रॉब्लम क्या होता है? अ लेक ऑफ पावर सोर्सेस, लेक ऑफ इरिगेशन, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, या एक्सेसिव रनफॉल, है ना। तो यहाँ बोला है कि हिली एरियाज में मैकेनाइजेशन का जो मेन प्रॉब्लम क्या होता है, लाइक बिजली की कमी, इरिगेशन का इशू, स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड, या फिर ज्यादा बारिश होना। तो बेसिकली स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड वहां पर कम होते हैं। तो द मेन कंस्ट्रेंट वो आपको समस्या देखने के लिए मिलती है कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स नहीं होने की वजह से वहां पर आपका अ मेजर कंस्ट्रेंट इन फार्म मैकेनाइजेशन इन हिली एरिया में ये आपका मेन माना जाता है। तो द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। What is the full form of CHC in context of farm mechanization? Okay, CHC का full form क्या है मैकेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में? बेसिकली इसके बारे में पूछा गया। तो द सेंट्रल हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर, कम्युनिटी हायरिंग कॉर्पोरेशन एंड द क्रॉप हैंडलिंग सेंटर। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर। तो मैंने बताया था कस्टम हायरिंग सेंटर। ओके, कस्टम हायरिंग सेंटर जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, किराए में मशीन अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर डूइंग द ऑपरेशन। कुछ समय के लिए वी कैन टेक द मशीनरी इन अ रेंट, और फॉर द प्रैक्टिसेस वी कैन टेक। ओके, किसी भी टाइप की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग हायरिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द विच इंप्लीमेंट इज यूज्ड फॉर लैंड लेवलिंग? लैंड लेवलिंग के लिए किस टाइप के इक्विपमेंट्स आप लोगों के यूज होते हैं, इंप्लीमेंट यूज होते हैं?
तो हैरो, लैंड लेवलर, थ्रेसर या रीपर। सो फॉर द लैंड लेवलिंग आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो जो लेवलर्स होते हैं वी आर यूजिंग फॉर द लैंड लेवलिंग, है ना। तो सभी के लिए आप लोगों के अलग अलग इम्प्लीमेंट्स है ना। हैरो कहाँ यूज होगा, विलेज में यूज होता है। थ्रेसर फॉर द हार्वेस्टिंग ऑपरेशन, रीपर हार्वेस्टिंग ऑपरेशन। तो बेसिकली दिस ऑल आर द इम्प्लीमेंट्स डिजाइन फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन। और जो लैंड लेवलर होता है स्पेशली डिजाइन होता है लैंड लेवलिंग के लिए। ओके, now the next one, the question number 9, that is a drug dairy reduction by mechanization is especially important for which group? Youth, aged farmers, women laborers and tractors owners। तो मैंने बताया था कि दो ड्रग डेयरी रिडक्शन हुआ है बेसिकली वुमेन्स लेबर्स के थ्रू हुआ है। तो वुमेन्स लेबर आर द इम्पोर्टेंट देयर, है ना। तो बेसिकली मैकेनाइजेशन का सबसे ज्यादा ड्रग डेयरी किस ग्रुप के लिए रिड्यूस होती है, तो वुमेन्स लेबर्स के लिए कम होती है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। Next question, that is in India, farm power availability in 2023 is approximately is what? इंडिया में अगर बात करें फार्म पावर अवेलेबिलिटी की कब 2023 में, तो वो कितनी थी? तो बेसिकली 2.5 किलोवाट पर हेक्टेयर तक की आपके पास फार्म अवेलेबिलिटी थी इन द कंडीशन। तो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। ओके, सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस यू विल सी ऑन द एग्जामिनेशन एंड इट कम्स ओके ऑन अ डिफरेंट मैनर। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। अभी कैसे मिलेंगे, तो आई विल प्रोवाइड यू all 1500 MCQs with the concepts. Okay, the question number 11, that is the mechanization always reduce employment in agriculture. So basically false, it shifts labor to higher skilled jobs. Okay, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि जो मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन से हमेशा एम्प्लॉयमेंट कम होता है, हो जाता है? तो नहीं, इससे बेसिकली काम बढ़ता है, स्किल्ड जॉब बनाते हैं हम लोग इसमें, है ना। तो भाई क्योंकि अब मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए भी तो हम लोगों को चाहिए ना लोग, तो उसके लिए फिर ये गलत पॉइंट है आप लोगों का। तो भाई ये लेबर को स्किल जॉब प्रोवाइड करने के लिए भी हेल्प करता है ना। तो कंप्लीटली नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट वन इज सीड्रिल्स आर यूज्ड इन प्राइमरी टिलेज। तो सीड्रिल का यूज हम लोग केवल प्राइमरी टिलेज में करते हैं। तो फाल्स, यूज्ड इन सोइंग एंड नॉट टिलेज। तो बेसिकली सीड्रिल्स का यूज तो हमारा सोइंग ऑपरेशंस में होता है, टिलेज ऑपरेशन में नहीं होता। तो बेसिकली दिस ऑल आर द कवरेज ऑफ द this lecture। Okay, so these all are the MCQs which can ask in the examination, or this is the main session of the orientation and scopes of the farm mechanization। Okay, so this is the first lecture and this is a very basic lecture। From tomorrow's lecture we'll discuss the next topic like tillage equipments, and what are the primary and secondary tillage equipments, how can we use the tillage, and what is the tillage operation. Here we'll see the sowing and planting operations, intercultural operations and fertilizer applications we are using in this condition, equipments we are using, okay, which types of equipments we use in this condition we'll see on the lecture. Here we'll see the plant production harvesting machinery also, threshing equipments also. We'll see the complete coverage of the machinery and power also in this lecture। Okay, so day by day we'll go with the topic। okay, और इस तरीके से आपकी बैचेस चलेगी। अब जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो दे कैन ज्वाइन द बैच एंड गेट द बेनिफिट, है ना। अगर अच्छा लगा तो नंबर पे मुझे कॉल करिए एंड यू कैन ज्वाइन द बैच ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट lecture and all the lectures you will see on the application round। This is the demo lecture, that's why I'm providing in the YouTube, but after the lecture number 2 you will get all the lectures in the YouTube also। okay, so thank you, we'll meet on the next